Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sana Mariam. I'm a student. It's very hard to pay gratitude towards Allah for giving us such a nice personality in the form of Dr. Zakir Naik. Sir, I want to ask about an ayah, about a verse from Surah An-Nur, which mostly people misinterpret. I'm going to translate in Urdu. It's from verse number 35, that Allah नूर है ज़मीन और आसमान का, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ताक है और उसके ऊपर चिराग, और वो चिराग शीशे की कंडील में है, और वो एक बाबरकत जैतून के तेल से जलाया जाता है, और वो बाबरकत जैतून का दरख्त ऐसा कि ना वो मशरिकी है ना मगरिबी, और बहुत खूब है कि वो चिराग आप ही रोशनी देने लगे। अल्लाह जिससे चाहता है अपनी नूर की तरफ रहनुमाई करता है। I want to have this the interpretation from you, sir. Most people misinterpret this. Thank you. बेन सवाल किया सूरह नूर की आयत सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और धरती के नूर है, और उसकी मिसाल है जिस तरीके से there's a lamp, there's a niche in between, कि एक मिसाल है कि कंदील की तरह है, उसमें एक चिराग है। उसकी मानी क्या है बहन पूछ रही है। सिस्टर, द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात, आसमान और इस धरती के लिए हिदायत का जरिया है, नूर है और सीधी राह दिखाते हैं। आम तर्जुमा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत है। आम तर्जुमा है कि वो रोशनी फैलाते हैं सारी दुनिया में, सारी कायनात में, सारी धरती पे, सारे आसमान पे। इसकी मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु इज द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द चेरिशर ऑफ एवरीवन, ही इज द वन टू गाइड एवरीवन। वो सब इंसानों को हिदायत देता है और हमें उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग दूसरा तर्जुमा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सही तर्जुमा ये कि वो सब लोग को सही राह दिखाता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ भाई साहब पूछिए। Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pass down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, so what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. We'll ask the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is the mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiq or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman while getting married can put a clause, is known as talaq-e-tawfiq, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. Third type. Fourth type is if it is not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then if the husband ill-treats her or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fasq. And the fifth type is khula, that maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to pass for personal reasons, she can request the husband to give divorce and he gives divorce. That's known as khula.
Hope that answers the question. हाँ भाई सर. अमरदेव शास्त्री है. जी हाँ. मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते कि सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूं जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते हैं. मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं. दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, की इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सबने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते हैं, ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क. आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते. तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है. ये हराम है कि किसी और को पूछना. इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं, बिल्कुल गलत है. तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है. आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है. सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें. एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं. आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है. एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है. और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है, ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई. अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं. कि अल्लाह एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं. उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले. मिसाल के तौर पर किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं, वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाज़िल हुआ. लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा. लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए. अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून. इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है. लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं, और लानत है उनके हाथ के ऊपर. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है. तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मूर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत
शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना, और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूंगा पहले बेटा 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उन्हें नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। हेलो, मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो।
یہ نہیں ہے کہ ہندو میریج ایکٹ کو اگر انڈین میریج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے. مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی. ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے, اس کی وجہ مجھے بتائی جائے. بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں. پہلا سوال ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کہ نہیں, لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے, افواہ ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوں گی, اس سے میں نہیں کہتا ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا, ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے یہ بالکل افواہ ہے, بالکل غلط ہے, بے بنیاد ہے, بالکل بے بنیاد ہے. کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے, اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے. اور ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھا جانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے. کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا, لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے. آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے. آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر, اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے. اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا, آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے کہا ہزاروں لوگ کا قتل کیا, کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا. دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں, وہ مذہب کی غلطی نہیں, وہ مذہب کے ماننے والے کی. کرسچین میں آپ کو اس میں خراب لوگ ملیں گے, مسلمان میں ملیں گے, ہندو میں ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے, ڈرگ میں دھندا کرتے. ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں, کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے, اسلام کو نہیں. اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا, یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا, اور یہ ہی ثبوت ہے. میں نے تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگوں نے؟ آپ ان کے رشتے دار تو نہیں تھے نا, آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں چھوڑا؟ اگر دمی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے, سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے, اور سب مذہب کی اچھی چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز, ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے, کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد, ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو, دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہے, ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا, ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں, ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم مسکرا جاتے.
पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए. आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए. बिल्कुल सही. मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको. आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं. सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं. मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना. लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा इंशाअल्लाह. हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज लेंगे. तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा. ये चैलेंज है. कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का. मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए. हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए. इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए. आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं. देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं. इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176. उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा. आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा. सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3. आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा. आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4. बच्चे हैं तो 1/8, 1/8. ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12. और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3. लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए. आप नहीं कहते थे कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है. लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं. आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं. और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.